dear friends, welcome again to my channel Geotechnical Engineering Consultancy Tips. We had actually discussed about the subsoil surface exploration in our previous lecture, but now the most important point comes out, as it is the part 1 of field investigation. This is my lecture 1 part 2 continued. The most important thing at the initial concept stage of any structure is how to decide the depth of investigation and the number of boreholes to be explored for that very particular civil engineering structure. So what need to be focused on this point of view is that it all depends upon number 1 point, the type of structure, number 2, its size and shape, number 3, the soil profile and the physical properties of the soil that constitutes each individual stratum. It is generally presumed or finalized after it has been actually done at the site. And what do you mean by individual stratum? When we do explore the boreholes below the natural ground level to a certain depth, your strata varies. It may be sand first, it may be clay again, and then sand, and likewise. Means you get an intermittent kind of soil strata. The property of the soil is usually being identified by visual inspection at the site, which in the due course of time is verified after the test results are completed in the laboratory, and then we interpret those test results for the formation and giving the final print to any geotechnical investigation. Now, point 4 is, I had already discussed in my previous lecture that generally the depth of investigation required is 1.5 to twice the width of the proposed foundation below the proposed founding level. But it is not as simple as this. Why? Because in that very case, you exactly if calculate, जो आपकी डेप्थ ऑफ इन्वेस्टिगेशन होती है वो बहुत कम भी कैलकुलेट हो सकती है. मान लीजिए किसी ने आइडेंटिफाई करा कि हमें एक सिंगल स्टोरी स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें हमारा 2x2 का कॉलम आना है और 1.3 मीटर डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जानी, तो 1.3 प्लस 1.5 टाइम्स ऑफ 2 is 3, 4.3 से 6 मीटर डेप्थ ऑफ इन्वेस्टिगेशन व्हाट आई सजेस्ट वुड बी द मिनिमम रिक्विजिशन. बट अब यही आप मान कर चलिए कि वहीं हमारा एक 20 मीटर की लैंड स्ट्रिप वाइड अवेलेबल है जिसमें 20 स्टोरी स्ट्रक्चर बनाना है, तो हमारा जो डेप्थ ऑफ इन्वेस्टिगेशन का क्राइटेरिया होगा वो अलग वर्कआउट हो जाएगा, जो मैं अपने नेक्स्ट बोर्ड में दिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में. अब क्या है, सिमिलरली एट दिस वेरी पॉइंट ऑफ टाइम इफ वी एनकाउंटर एनी वीक और लूज सॉइल या से एनी फिल्ड अप सॉइल, then the boring need to be continued to the stratum where loads of the proposed structure can be carried without any undesirable settlement and shear failure. Why I am emphasizing on this very point is कि आप इन्वेस्टिगेशन फील्ड पे करने एक ही बार जाएंगे तो आपको सारी फोरकास्ट या सारी जो भी आपके एंटिसिपेटेड दिक्कतें आ सकती हैं व्हेन यू गो इन फॉर द स्ट्रक्चरल डिज़ाइन ऑफ द स्ट्रक्चर, वो आपको कंफर्म करते हुए अकॉर्डिंगली डेप्थ ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक बार में फील्ड पे डिसाइड कर लेना चाहिए. इसलिए मैंने लास्ट लाइन मेंशन करी है, जिसकी वजह से ये हो सकता है कि व्हेन वी गो टू द साइट, एनी साइट से डिसाइड करके हम जाते हैं कि 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर डेप्थ ऑफ बोरिंग करनी है, और अगर वहाँ हमें कुछ अनएंटिसिपेटेड वीक स्टार्टअप मिलता है तो अकॉर्डिंगली विद द कंसर्न इंजीनियर इंचार्ज और क्लाइंट हमें हाथ के हाथ फील्ड पे इन्वेस्टिगेशन डेप्थ बढ़ा लेनी चाहिए. अब ये होता है कि हाउ टू डिसाइड द नंबर ऑफ बोरहोल्स. तो इन दिस वेरी केस देयर आर बेसिकली 2 और 3 मोटे मोटे पॉइंट्स जिसको हम आपको हाईलाइट कर सकते हैं. दैट आर कि द एरिया टू बी कवर्ड, दैट इज द L/B, दैट इज द प्लॉट एरिया, या यू कैन से द प्लान एरिया वेयर द बिल्डिंग इज टू बी कंस्ट्रक्टेड. The second one, if it is one single structure, say if it is a one big multiplex or mall, then the number of boreholes, the criteria, the number of boreholes required would be separate. Say if there is to be single tower to be built at the site, तो आपका एक टावर मान लीजिए 10 स्टोरी का बनना है, वहाँ हम 3 बोरहोल करा लेंगे. लेकिन यही अगर कोई कैंपस में कहता है कि हमें 20 टावर्स बनाने हैं,
तो क्या होता है, क्लाइंट फील्स लाइक कि भाई हर टावर में हम 3 बोरहोल कराएंगे तो हमारा इन्वेस्टिगेशन खर्चा ज़्यादा होगा, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हम ये कहते हैं भाई ठीक है आप 3 ना कराइए तो 2 बोरहोल करा लीजिए पर टावर। जैसे किसी कैंपस में 20 टावर आने हैं तो आप 40 बोरहोल कराइए, बट I would always recommend and emphasize that you need to go for at least 3 boreholes per tower, so that in case all the individual towers can be looked after separately and you can save on the cost based on the kind of the soil met with at the site. Because अगर आपका पहला और दूसरा बोरहोल एक जैसा है तब तो हम 2 बोरहोल से सफाइस कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट, बट अगर यही हमारा बोरहोल 1 और 2 में किसी टावर में डिफरेंस आ जाता है, देन वी हैव टू हैव अनदर थर्ड बोरहोल एक्सप्लोर एट द साइट फॉर दैट वेरी टावर, जिससे हम अपने आप को डिसाइड कर लेंगे कि अब हमारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया। नाउ आई विल स्विच ओवर टू माई नेक्स्ट बोर्ड। नाउ कमिंग ओवर टू माई नेक्स्ट बोर्ड, actually I left over with my 5th point with regards to the depth of investigation required. If say we have to have deep foundations just like pile foundation or well foundations, then the depth of investigation required is at least 1.5 times width of the structure from the bearing level, that is the toe of the pile or bottom of well। कहने का मतलब ये है कि इस केस में कोड हमारा ये बताता है कि अगर कहीं पाइल फाउंडेशन हमें इन्वेस्टिगेशन जाना है तो पाइल की टो एंटिसिपेटेड से हमें इतना 1.5 टाइम्स द 1 to 1.5 टाइम्स द लेंथ ऑफ द पाइल इन्वेस्टिगेशन डाटा हमारे पास होना चाहिए। या अगर वो हमारी वेल फाउंडेशन है तो मान लीजिए हम 22 मीटर बिलो लो वाटर लेवल कोई वेल अपना फाउंडिंग लेवल दे रहे हैं और 5 या 6 मीटर का हमारा वेल का डायमीटर है, तो 22 प्लस 5 या 6 मीटर का 1.5 गुना से 9 मीटर से 30-32 मीटर हमारे पास इन्वेस्टिगेशन डाटा अवेलेबल होना चाहिए फील्ड पे, इन ऑर्डर टू गेट द रिपोर्ट प्रिपेयर्ड एंड डू एमिकेबली इन फुल कॉन्फिडेंस द सेटलमेंट क्राइटेरिया कंसिडरेशंस आफ्टर द शेयर क्राइटेरिया कैलकुलेशंस हैव बीन डन। सो व्हाट वी नीड टू एम्फसाइज इज कि वी मस्ट हैव द टोटल इन्फ्लुएंस जोन covered for settlement analysis. Okay. Now, as I have told you friends कि there are lot many civil engineering structures, इसमें मैं सबसे पहले बाउंड्री वॉल और रेजिडेंसेस से लेके शुरू कर रहा हूँ, फिर मैं धीमे धीमे अपने आने वाले लेक्चर्स में सभी के लिए इन्वेस्टिगेशन डेप्थ कैसे डिसाइड करी जाए वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और थोड़ा सा मैं ये भी फोकस करना चाहता हूँ कि ये जो मेरे लेक्चर्स आगे के 2-3 होंगे, ये किसी भी कॉन्सेप्चुअल स्टेज में किसी भी आर्किटेक्ट को या किसी भी क्लाइंट को कैसे हम डेप्थ और नंबर ऑफ बोरहोल्स डिसाइड करें, ये उनको हेल्प करेगा। आई थिंक इट मे हेल्प देम अ लॉट। तो नाउ अब अगर हम कोई बाउंड्री वॉल बनाते हैं, मतलब सबसे सिंपल स्ट्रक्चर हम ले रहे हैं, तो बाउंड्री वॉल यू मे हैव नॉर्मल लोड बेयरिंग वॉल ऑफ हाउसेज एंड स्मॉल कैंपसेस, you may have boundary wall for big industrial houses, like कोई सीमेंट इंडस्ट्री है, कोई केमिकल इंडस्ट्री है, कोई पेंट इंडस्ट्री है, कोई और इंडस्ट्री, या किसी एयरपोर्ट की बहुत बड़ी बाउंड्री वॉल। इसके अलावा हमारी आरसीसी रिटेनिंग वॉल्स बनती हैं काफ़ी जगह अप्रोच रोड पे ब्रिज और कलवर्ट के लिए, या आरसीसी रिटेनिंग वॉल्स हम बनाते हैं जब बेसमेंट्स देते हैं तो बिल्डिंग के साइड्स में। या एक हमारा एक नया कॉन्सेप्ट और शुरू हुआ है जो हम आज की डेट में ब्रिजेस में यूज़ कर रहे हैं, आरी वॉल। तो आरी वॉल में बेसिकली जो विड्थ ऑफ फाउंडेशन होती है वो बहुत कम होती है। तो ये मैं क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि इस बेसिस पे हमारी डेप्थ ऑफ बोरहोल और नंबर ऑफ बोरहोल्स डिसाइड करना हमें आसान होता है। अब मान लीजिए किसी हम बड़े कैंपस के बाउंड्री वॉल पे जा रहे हैं, मतलब किसी घर में कोई बाउंड्री वॉल के लिए कोई इन्वेस्टिगेशन कराना चाहे तो भाई एक बोरहोल सफिशेंट है 4 से 6 मीटर डेप्थ का। लेकिन अब हम यही कहें कि हमें किसी बिग इंडस्ट्रियल हाउस के लिए या एयरपोर्ट के लिए बाउंड्री वॉल की टेस्टिंग करनी है, जो बाउंड्री वॉल की हाइट काफ़ी होती है, 6 मीटर 8 मीटर भी हो सकती है। तो वहाँ हमें क्या करना पड़ता है कि अगर मान लीजिए कोई छोटा कैंपस है तो हम
हर 100 मीटर इंटरवल पे एक बोरहोल कर सकते हैं, या कोई बहुत बड़ा कैंपस है एयरपोर्ट जैसा तो हर 500 मीटर पे एक बोरहोल हमें वहाँ डिसाइड करना चाहिए उस बाउंड्री वॉल के इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब क्या हुआ कि हमारी इन्वेस्टिगेशन डेप्थ कैसे डिसाइड होगी? रिटेनिंग वॉल की हाइट के बेसिस पे हमारी बोरहोल डेप्थ डिसाइड होगी। आरी वॉल में जनरली क्या होता है कि हमारा फाउंडेशन विड्थ बहुत कम होता है, तो यहाँ हमें लगता है कि 5 से 6 मीटर फाउंडेशन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन रिक्विजिट है। अब यही अगर हम मान के चलते हैं किसी बड़ी बाउंड्री वॉल पे हम काम करने जा रहे हैं, वहाँ हमें कोई लूज स्टार्टा मिल जाता है और ये डिसाइड होता है कि इतनी ऊंची बाउंड्री वॉल है कि यहाँ पाइल फाउंडेशन जाना पड़ेगा, तो उस केस में हम ये मान के चलते हैं इंस्टेड ऑफ 6 मीटर विच आई हैड अर्लियर सजेस्टेड यू, हमें 10 मीटर या 12 मीटर की डेप्थ ऑफ इन्वेस्टिगेशन करा लेनी चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट केस आता है रेजिडेंसेज या ऑफिसेज का। तो अब क्या है, आजकल रेजिडेंसेज में मैसिव पैलेशियल रेजिडेंसेज लोग बनाने लगे हैं, तो वहाँ क्या होता है कहीं कहीं पार्ट बेसमेंट होता है, कहीं पूरा बेसमेंट होता है। अब रेजिडेंसेज और ऑफिसेज में दीज स्ट्रक्चर्स कैन बी विद बेसमेंट और विदाउट बेसमेंट। अब आप ये मान के चलिए कि अगर कहीं भी हमारा बेसमेंट है तो हमारी इन्वेस्टिगेशन डेप्थ जो होती है रिक्वायर्ड जो होती है, बेसमेंट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, हमारी इन्वेस्टिगेशन डेप्थ में जो भी हमारा डेप्थ का क्राइटेरिया निकल के आ रहा है उसमें वी हैव टू ऐड द बेसमेंट डेप्थ ऑल्सो इफ अगर हम ग्राउंड लेवल से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो, और अगर यही हमारा बेसमेंट फ्लोर लेवल ऑलरेडी एक्सकेवेटेड है तो हम नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन डेप्थ जो डिसाइड करेंगे वो इन पर्टिकुलर केसेस में बेसमेंट के केसेस में डिसाइड कर लेंगे। तो अब क्या है, हमारी सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी या ट्रिपल स्टोरी स्ट्रक्चर हो सकती है जहाँ के लिए नॉर्मली 6 मीटर, 8 मीटर या 10 मीटर डेप्थ ऑफ इन्वेस्टिगेशन सफिशिएंट होता है। अब मान लीजिए इफ दिस इज G+3, G+4 और G+5 स्ट्रक्चर, तो हम ये मान चाहते हैं ऑन एन एवरेज एक 3 मीटर फ्लोर हाइट ले लेते हैं, तो हम ये मान चाहते हैं 12 मीटर, 15 मीटर, 18 मीटर और सो लाइक वाइज हम डेप्थ ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिसाइड कर सकते हैं इन जनरल। देखिए ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, बट इट इज़ बेसिकली हमें इसलिए इन्वेस्टिगेशन थोड़ी प्लस साइड पे लेकर चलनी चाहिए कि हम इन्वेस्टिगेशन दोबारा नहीं कर सकते, या वो G+5 है तो वो आप फ्यूचर में G+6 या G+7 भी कर सकते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन हैज़ टू बी डन ओनली वंस एंड इट कैन बी डन ओनली वंस। आपके स्ट्रक्चर के बनने के बाद वो इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता, फिर साइड में आपको करना पड़ता है। वैसे हम लोगों ने ये भी काम कई जगह करे हैं फाउंडेशन इन्वेस्टिगेशन की, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है इस पर और फ्लोर करना है तो हमें बगल में जा करके इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, और यही एक तरीका बचा होता है। एग्जिस्टिंग फाउंडेशन डिटेल्स वहाँ एक्वायर करने पड़ते हैं क्लाइंट से, उन्हीं फाउंडेशन डेप्थ ऑफ इट पे हमें बेरिंग कैप्शन निकाल के देनी होती है। तो फिर स्ट्रक्चर इंजीनियर कंसर्न डिसाइड करता है कि वेदर दिस गिवन फाउंडेशन फॉर एनी स्ट्रक्चर, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर जिसमें एक एडिशनल फ्लोर बनाने इज सफिशिएंट एनफ और नॉट, तब वो अकॉर्डिंगली चीज़ें डिज़ाइन करता है। अगर नहीं तो फिर एक कोई उसमें दूसरा तरीका निकाला जाता है फाउंडेशन का कि बाहर से कंटिन्यूसली पैरेलल टू द ऑल राउंड स्ट्रक्चर हम नए कॉलम्स देते हैं, उस पर बीम डाल करके और हम नया फ्लोर खड़ा करते हैं। ऐसे भी केस हमने करे हैं अपने करियर में। ओके नाउ अब ये होता है कि इफ से you have to build a 20 story structure in a 20 meter wide land। तो यहाँ समस्या ये होती है कि अगर हम RCC राफ्ट दे रहे हैं तो हमारे 1.5 times of 20 meter is 30 meter। investigation depth may be sufficient but we must take at least +5 meter in it for any unexceptional circumstances which we may encounter at the site। अब ये बट यू मे नीड 40 to 50 मीटर इन्वेस्टिगेशन डेप्थ इन दिस वेरी केस इफ से हमारा राफ्ट पे सफिशिएंट बेयरिंग कैपेसिटी नहीं आती है जिसपे हम उस स्ट्रक्चर को खड़ा कर सकते हैं। तो हम वहाँ डिसाइड करेंगे भाई हमें पाइल फाउंडेशन है, तो हमारे पास वहाँ 40 से 50 मीटर अगर इन्वेस्टिगेशन डेप्थ होगा तो दिस विल बी गुड। नाउ वी do have multi-story towers with stilt parking, basement, without basement। So अब मैं कहना क्या चाहता हूँ कि इन सब कंडीशंस के बेसिस पे हमारा इन्वेस्टिगेशन डेप्थ डिसाइड होता है। अब से इफ यू एनकाउंटर फिल्ड अप और लूज सॉइल और एनी अदर इंटरमीडिएट लूज सॉइल देन द डेप्थ ऑफ इन्वेस्टिगेशन नीड बी इंक्रीज अकॉर्डिंगली। अब इंटरमीडिएट लूज का क्या मतलब है, मान लीजिए हम फील्ड पे SPT कर रहे हैं, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट,
और 6-7 मीटर इन्वेस्टिगेशन डेप्थ करने के बाद एकदम से हमारी नील या 1 या 2 एन वैल्यू आ जाती है, तो वहाँ हमें ये होगा कि हम लोड कैसे आगे डिस्ट्रीब्यूट करें। तो हमें और इन्वेस्टिगेशन डेप्थ वहाँ, भले ही हम प्री एंटिसिपेटेड किसी सेट ऑफ माइंड से गए हैं, हमें इन्वेस्टिगेशन डेप्थ वहाँ इंक्रीज करनी पड़ती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें इस बात के लिए हमको और क्लाइंट को ओपन होना चाहिए, अगर साइट में हमें कोई अनएक्सेप्शनल चीज़ें एनकाउंटर करते हैं तो हम इन्वेस्टिगेशन डेप्थ अपनी अकॉर्डिंगली फील्ड पे बढ़ा लें। तो फ्रेंड्स, आई वुड से कि आई वुड लाइक टू फिनिश माई लेक्चर दिस वे फॉर दिस वेरी पॉइंट ऑफ व्यू, और आगे हम आने वाले अपने स्लाइड्स में या लेक्चर बोर्ड्स में और तरीके के स्ट्रक्चर्स में कैसे फाउंडेशन डेप्थ और नंबर ऑफ बोर्ड, कैसे हम इन्वेस्टिगेशन डेप्थ और कैसे नंबर ऑफ बोर्ड्स डिसाइड करें, ये डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। आई वुड लाइक यू कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बडिंग सिविल इंजीनियर्स में प्रोफेशनल इंजीनियर्स जो इस जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन को अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके बीच में इसको आप फैलाएं। और मैं ये मान के चलता हूँ कि कुछ चीज़ें हो सकता है मैं ऐसे अपने इन लेक्चर्स में ऐसी बताऊँ जो आजकल जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स होते हैं, जो गेट का एग्ज़ाम देते हैं, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, कुछ चीज़ें उनके लिए भी यूज़फुल हों, क्योंकि हर मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 15 से 20 क्वेश्चन जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन पे आते हैं। तो आई थिंक दिस मे बी ऑफ हेल्प फॉर स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो। थैंक यू।